Yes, good afternoon everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher, and today we are going to do chapter 1, Nationalism in Europe. We're going to start. We have started it and we will continue today. Right. So today, as Anush told us, Anush, from where we are going to read today? Now you all know that up to syllabus up to page number 10. Yes, Anuj? Ma'am, from the Revolutionaries 2.4 topic. Okay. Otherwise, page number 11 we have done. We are going to do from page number 12, revolutionaries. ठीक है बेटा. Thank you, Anuj. Yes, Rahul? Second paragraph of 2.3 is also left. 2.3 not completed? Yes, second paragraph is left. Page number? 11. 11. Okay, conservative regime. Am I right? Yes, ma'am. चलो ठीक है बेटा. हाँ जी, पेज नंबर 11 लास्ट पैराग्राफ कंजर्वेटिव रिजीम. ठीक है. Shall we start, beta? Krish, camera on. Shabnam, make your camera proper. Anush, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर बेटा. I hope all of you are with books and copies, right? Sure. Waiting for Shabnam only. Vishnur, beta, take your seat. Yes, now we are going to start and I have locked the meeting. Now no one will enter in the class. Yes, conservative we have done, and last paragraph we are going to do conservative regime set up in 1850. अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले let me ask one question to you. Raise your hands those who know the answer. If you want to take help from book, you can. If you want to take help from notebooks, you can. But I want answer. Okay. Who were conservatives? One hand, 2, 3, 4, 5, 6. Nothing new. I have asked nothing new to you. You have done the very first page key terms, and I am asking the same. 10 hands. Very good. Chalo. Krishnur, unmute yourself. Beta, who were conservatives? Ma'am, conservatives were the people who used to resist a quick change in the society. Yes, and what they want? They didn't want that quick changes in the society that French brought in the Europe. Achha. They don't want any kind of change actually. They don't want any kind of quick change in the society. They want gradual change. And they believe in their tradition, custom and monarchical institution and their traditional institution. Thank you, Krishnu. Chalo. Achha, dekho 10F, make one thing sure here. Today I am going to teach you not a new topic, the topic which we have discussed earlier. ठीक है, कंजर्वेटिव वाला. अब ऐसे कंफर्टेबल बैठना क्लास में, मेरी क्लास में, कि whatever the things I am teaching you, side by side I will ask question to you. मैंने जो बोला, मैंने जो समझाया, अभी मैंने आपको अनम्यूट करके आपसे पूछ लेना. ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोली जा रही हूँ, आप कहीं और ही हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. So today I am having 20 members here and I will check in between. ठीक है, तो जागते ही रहना मेरी क्लास में. ठीक है, चलो. अच्छा, कंजर्वेटिव तो थोड़ा सा तो मेरे को बता दिया आप लोगों ने, कंजर्वेटिव क्या होते हैं. Now grade 10F, write a question over here on book only. Here you will get little space na.
where we are going to start conservative regime in 1815. यहाँ ऊपर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो. Who were conservatives? Who were conservatives? कृष लिखो बेटा, लिखना पड़ेगा. Everybody is writing. Who were conservatives? What was their ideology? Krishnur, lower hand. What was their ideology? Actually ना few things you have told me कि कंजर्वेटिव कौन थे, वो क्या सोचते थे, वो क्या चाहते थे. Base is clear to you and this will be your first point. I am happy that you answered. Now I am asking two more things from you, but not now, after 5 minutes. हाँ जी पुरुषार्थ, want to say something? I'm actually joined late. Can you tell the page number? Today we are going to read from page number 11, last paragraph, conservative regime. Okay, ma'am. चलो, हाँ जी. सार्थक अग्रवाल, unmute yourself. Start बेटा. Yes, ma'am. Start reading. Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. चलो, They did not tolerate criticism. बेटा you have to wait. जहाँ पर full stop है means you have to stop. अब conservative ma'am. regime 1815 में जो हुआ था, that was autocratic. Autocratic मतलब dictatorship था, monarchy थी. Totally opposite of democracy. हाँ जी, सेकेंड लाइन सार्थक, यू हैव टू स्टॉप एट एवरी लाइन, तभी हम लोग ठीक से समझ पाएंगे. अनुज थोड़ा सा कैमरा ठीक कर बेटा. यस सार्थक. They did not tolerate criticism and dissent, and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. चलो जी, they did not tolerance and dissent. वो कुछ भी टॉलरेट नहीं करते थे, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते थे सरकार के खिलाफ. सरकार कौन थी, गवर्नमेंट कौन थी, मोनार्की. एंड दे डिड नॉट बिलीव इन डिसेंट. डिसेंट का मीनिंग लिखो, एग्रीमेंट. या आप लिखो डिसेंट का मीनिंग लिखो, डिससेटिस्फेक्शन. Yes, because particular meaning is important. Dissent. Dissent meaning डिफरेंट ओपिनियन. ठीक है, जिससे वो नहीं मानते थे कि ये चीज हो. तो दे टोटली बिलीव इन, वो टॉलरेट नहीं करते थे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला जाए. वन मोर थिंग, अब सार्थक ने पढ़ा, टू कर्ब द एक्टिविटीज विच क्वेश्चन द गवर्नमेंट. वो एक्टिविटीज को दबा देना, कर्ब करना, विच क्वेश्चन द गवर्नमेंट. मींस गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं पूछना ना. वी विल फॉलो द एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन सेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कौन सी थी तब? Which type of government was there? Kashish, unmute yourself. Which type of government? Monarchy थी. Conservative people. Yes, yes. Thank you, Kashish. Monarchy थी, and they don't want to question the government. Government अब हम करते हैं ना question, because now the government is answerable to us. Whatever the government is doing, उसको आंसर देना है हमें. Now किसान बिल पास हुआ, 3 कानून पास हुए किसानों को लेकर, हमें पसंद नहीं है. Most of the people, they are not in the favor of passing these 3 laws. वो अभी तक बैठे हैं दिल्ली में, more than 100 days हो गए. हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू अस. हमारे पास RTI 2005 बहुत बढ़िया हथियार है हमारे पास. वी कैन फाइल एन एप्लीकेशन less than 20 rupees, then we can file a case against the any kind of candidate or leader that you are having this much of salary and how can you purchase OD. इतनी सैलरी में, 3 महीने की सैलरी में OD कैसे ले लिया आपने? तो here we are having RTI weapon है हमारे पास. but at that time when conservative regime were set up in 1815,
Those were totally conservative people, autocratic. They never question government. वो सरकार से कुछ नहीं पूछते थे. This will be the first point. अभी point नहीं बनाने आप, अभी रुक जाओ. हाँ जी सार्थक, next बेटा. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. चलो जी. Now जो दूसरा हमारे पास हथियार होता है मीडिया, उस पर totally ban है. Everything is banned to media. All the things, all the articles, all the story which will be printed in the newspaper or in media or articles or songs or books, whatever it will be printed, वहां पर एक censorship लगेगी. Censorship समझते हो? Censor board is here in which few members are there. They check each and everything, every article before make it public. अब आपके मान लो स्कूल में क्या है कि कोई मैगजीन निकलती है, ठीक है? For that magazine we have asked so many people for their articles, for their jokes, for their speeches. ठीक है, कुछ भी देना तो हम आपसे बोलते हैं. So whatever you will give us directly, it will not print in the book. क्योंकि वो स्कूल कॉलेज की बुक है तो डायरेक्ट को प्रिंट नहीं होगा. What it will be, there will be a censor board, there will be a panel, there will be a department to check the grammatical mistakes, to check the language, to check the material which is in the article. Then after approval it will be published in the book. In the same sense, अब क्या चल गया था वहां पर, सेंसर बोर्ड चल गया था. बट दैट सेंसर बोर्ड वाज इन नेगेटिव सेंस. पीपल कांट एक्सप्रेस देयर ओन फीलिंग्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस. जिस आर्टिकल में इंडिपेंडेंस को लेकर कुछ बात है, जिस आर्टिकल में फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर बात है, वो चीज प्रिंट नहीं होगी. So this was censor board. This was the second step taken by conservative people. You will not mark, just read. हाँ जी चरणप्रीत, unmute yourself बेटा. नेक्स्ट पढ़ो बेटा. हाँ से सार्थक ने छोड़ा. The memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. Yes, one of the major issue taken by the liberal nationalists who criticized the government, new conservative order was freedom of press. आपने क्या पढ़ा चरणप्रीत, दोबारा पढ़ना लाइन. On the memory of French Revolution. Repeat line which you have read. On the memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. ठीक है. The memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. लेकिन फिर भी आपको पता है जो आगे बढ़ने वाले होते हैं उनको कोई रोक नहीं पाता, उनको कोई रोक नहीं पाता. अब ये देखो मेरे 10F के बच्चे 20 people, they are sitting here to learn something. Last 20 people are not here. उनको लगता है कुछ ऑनलाइन इशू हो जाएंगे, नहीं पढ़ा जाएगा, बोल देंगे वायरस के डेज चल रहे थे, पेंडेमिक कंडीशन थी, नहीं पढ़ हुआ. No one will listen your any argument afterwards. Here the classes are going on. See, your proper attendance is there. Proper आपकी पूरी attendance लगती है. तो जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो पढ़ जाते हैं. Now you 20 people are sitting here to learn something. ये जो चैप्टर में अब करवा रही हूँ, it will never be repeated. क्या देती होती हूँ मैं, करवा दूंगी बाद में, बट करवाती नहीं हूँ मैं. जो आगे बढ़ने वाले होते हैं वो बढ़ ही जाते हैं मुश्किलों में भी. In the same sense, here you are reading this line कि French revolutionaries को कोई रोक नहीं पाया, liberals को फिर भी रोक नहीं पाए conservative people. वो जो आगे बढ़ रहे थे, whatever they were doing, their secret societies, their secret conspiracy against the autocratic government, they were doing, they were continuously doing. उनको कोई रोक नहीं पाया. हाँ जी, yes, continue बेटा, चरणप्रीत. Yes, One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. yes, one of the major issue which was taken by the liberal nationalists was the freedom of press. आपको पता है प्रेस की फ्रीडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर प्रेस आपको पता है किसी गाड़ी के पीछे लिखा हो ना प्रेस, उसको कोई नहीं रोकता, उसको कोई नहीं रोकता. स्कूटर के पीछे, बाइक के पीछे भी प्रेस लिखा हो ना तो उसको कोई नहीं रोकता. प्रेस में इतनी पावर है, मीडिया में इतनी पावर है, जर्नलिस्ट को कोई रोकता नहीं है. So the liberal nationalists only wanted one thing,
दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गई ना तो वट एवर दे वॉन्ट दे विल प्रिंट इन द बुक एंड books will be published for the public, and when people read the books, the newspaper, the journals, the articles, what will happen, we will aware about the liberty. अब हम कहाँ से लिबर्टी के बारे में अवेयर हुए हैं? अब now we people have never seen रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और तात्या टोपे और शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, हमने उनको कभी नहीं देखा. We have never even witnessed their warrior stories, but हम वो बुक्स के जरिए पढ़ते हैं. Now you people never visited to Europe. यूरोप आप कभी नहीं गए हो. You never visited to Italy, France, but फ्रांस के बारे में आपको कितना पता है? फ्रांस के बारे में कैसे पता है आपको? फ्रांस के बारे में आपको इस बुक से पता है. ये कौन सी बुक है? This is of grade 9. ये grade 9 की बुक है. यहाँ पे फ्रांस पढ़ा था. Now this is grade 10. Here we are going to read full Europe. So because of this book, we know about 16th century, 17th century, 18th century, and 19th century, and even now, 2020 में. So the thing they wanted only and only one thing, freedom of press. Now you have completed your 3 points. Means first point में आप उनका definition डालोगे, second point में आप डालोगे कि what they want, and third point में आप डालोगे कि French Revolution फिर भी नहीं. Now we are going to wind up the question. Please take a pen in your hand and be very careful while answering. Yes, beta, cameras on. Conservative regime set up in 1850 was autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to be curb activities that question the legitimacy of autocratic government. This will be first point. This will be first point. And heading will be conservative regime. Conservative regimes. Second point. Most of them. प्लीज मार्क कर रहे हो? हाँ जी, ऑन नेक्स्ट पेज लिबर्टी एंड फ्रीडम, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड हेडिंग विल बी imposed censorship laws. Imposed censorship laws. Now third, last 3 marks question. The memory up to press, and heading will be freedom of press. This question we will do directly from book. We will not write in copy. Now next question, the revolutionaries. Show me thumbs up if you people are ready to learn about revolutionaries. Thank you very much, Purushart. Purushart, unmute yourself. Purushart, revolutionaries क्या होते हैं? Ma'am, revolutionaries that people who were opposite to conservatives and did not support the monarchical system, and they wanted quick change in the society. सारा कंजर्वेटिव का उल्टा उल्टा बोल दी जा रहा है. वो तो ठीक है, बट ये क्या करते होते हैं रेवोल्यूशनरीज? ये क्या करते हैं? They bring revolution, bring a revolution. Yes, they bring revolution. आप can you tell me one revolutionary name from India? Not from Europe. वो मैं पढ़ाऊंगी. कोई रेवोल्यूशनरी बताना जरा इंडिया में से. गांधी जी. गांधी जी तो नहीं थे रेवोल्यूशन लाते, वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे बट विद अ पीसफुल वे. कोई और? लक्ष्मीबाई. लक्ष्मीबाई, वो रेवोल्यूशनरीज थी, आप कह सकती हो. वन मोर. तांतिया तोपे. तांतिया टोपे. राहुल, वन मोर. मंगल पांडे. मंगल पांडे. कशिश. बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक. And वल्लभ भाई पटेल.
अरे वैसे जब हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं ना, तो स्पेशली पंजाब के लोग एक बंदे का नाम जरूर लेते हैं कि वो रेवोल्यूशन लाना चाहता था। आप उसी का नाम नहीं ले रहे हो। सृजन। मैम भगत सिंह। भगत सिंह वो थे असली रेवोल्यूशनरी इंडिया के। दोज ऐसे लोग जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, पूरे देश को चेंज करना चाहते हैं। वाज एट वेरी यंग एज ही वाज असैसिनेटेड। 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे देश के लिए। वो थे लिबर्टी लाने वाले रेवोल्यूशनरीज। नाउ वी विल लर्न वन मोर रेवोल्यूशनरी फ्रॉम यूरोप। वैसा ही एक बंदा भगत सिंह जैसा अब यूरोप से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन हियर, हु वर रेवोल्यूशनरीज? यहीं पर लिख लो, हु वर रेवोल्यूशनरी? What were their demands? What were their demands? Explain the role of, हाँ बुक पे लिखना, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेना, तो साइज में छोटा कर लेना। Explain the role of one revolutionary from Europe. Explain the role of one revolutionary from Europe. भगत सिंह नहीं पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे। राइट बेटा? चलो, खुशात ने हमें काफी कुछ बता दिया रेवोल्यूशनरी के बारे में। वो होते कौन है? आस्था धवन, अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट रीडिंग बेटा। रेवोल्यूशनरीज। During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. To be revolutionary at बस बेटा, you have to stop after every full stop. Okay. अच्छा, आस्था ने फर्स्ट लाइन पढ़ी है कि ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 के बाद आने वाले जो साल थे, लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड काम करते थे। कोई शरेआम नहीं कर सकते थे, सबके सामने वो अपनी प्लानिंग रेवोल्यूशनरीज नहीं कर सकते थे, तो वो सीक्रेटली करते थे। उन्होंने सीक्रेटली अपने ग्रुप बनाए हुए थे, तो सबके सामने क्यों नहीं कर सकते थे? आस्था, रोल नंबर 2, अनम्यूट योरसेल्फ। सीक्रेटली काम क्यों करते थे वो? सबके सामने क्यों चोरी चोरी काम क्यों करते थे? सबके सामने क्यों नहीं करते थे? Ma'am, because there was a censorship applied. No. सेंसरशिप तब था, सेंसरशिप तो आस्था तब थी ना, वो बुक नहीं छाप सकते थे अपनी, कोई मटेरियल प्रिंट नहीं हो सकता था, तो ग्रुप की चोरी चोरी बनाते थे वो सीक्रेटली। कशिश। मैम क्योंकि उस समय में कॉलोनियल रूल था और कॉलोनियल जो रूलर था वो अलाउ नहीं करता था इन सब चीजों को। कॉलोनियल की जगह ना, कॉलोनियल की जगह आप कंजर्वेटिव वर्ड यूज करो, ठीक है? बिकॉज कंजर्वेटिव पीपल वर देयर, ऑटोक्रेसी थी। अभी आप पढ़ के हटे हो, ऑटोक्रेसी मतलब कुछ भी कोई भी नहीं छाप सकता गवर्नमेंट से पूछे बिना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते गवर्नमेंट से, तो फिर शरेआम कैसे काम करते? तो इन रेवोल्यूशनरी ने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू की। हाँ जी आस्था, सेकंड लाइन बेटा, एंड प्लीज अंडरलाइन सेकंड लाइन, दिस इज 1 मार्क आंसर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज? यस आस्था। At this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Yes. Now what she read, to be revolutionary at that time means commitment to oppose monarchical forms. उसका मतलब था जो रेवोल्यूशन करेगा वो मोनार्की के खिलाफ होगा, जो रेवोल्यूशनरी होगा वो लिबर्टी के हक में होगा। Those who are revolutionaries, it means they want freedom and liberty. Yes, Kushat, want to say something, beta?
Can you tell the definition of revolutionary again, where to mark? हाँ जी, टू बी अप टू फ्रीडम, वन लाइन ओनली। चलो आस्था, Okay, ma'am. कंटिन्यू बेटा आस्था। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. Yes, most of the revolutionary thought that for the nation state, nation को आजाद करवाने के लिए एक काम तो करना है, और वो काम क्या होगा? क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट बनाने के लिए हमें स्ट्रगल तो करना। Now we will read about the role of one revolutionary। ये सारा इंट्रोडक्शन थी आपका फर्स्ट पैराग्राफ डेफिनेशन। Now we are going to, आपने क्वेश्चन में लिखा ना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी वन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम यूरोप, तो बस अब हम उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। भगत सिंह जैसा ही 24 साल का जवान था, और 24 साल की उम्र में वो जेल चला गया क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व था। यस, राहुल डडवाल, अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट बेटा। वन सच इंडिविजुअल। Yes, ma'am. स्टार्ट रीडिंग। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. यस, उसने पहली लाइन में राहुल ने बहुत कुछ पढ़ दिया, आपके लिए सब कुछ नया है, ये आज मैं सब कुछ समझाती हूँ। फर्स्ट लाइन में राहुल ने पढ़ा कि एक रेवोल्यूशनरी था गेस्पी मेज़िनी। इसका नाम गलत नहीं बोलना आप लोगों ने। आपका नाम तन्वी ठाकुर, चंद्रप्रीत, रोहित बहल, कशिश, राहुल डडवाल, उसका नाम गेस्पी मेज़िनी। नाउ स्पीक 5 टाइम्स गेस्पी मेज़िनी। नाहारिका तू नहीं बोल रही है, नाम बोलना नहीं आना फिर उसका। गेस्पी मेज़िनी। यस, हाँ सार्थक, वांट टू से समथिंग? Ma'am, this name was also in a grade 9 book. अच्छा था फिर, गुड गुड गुड, चलो फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक था गेस्पी मेज़िनी, रेवोल्यूशनरी था, वो रेवोल्यूशन लाना चाहता था, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करता था, एंड ही नेवर एवर बिलीव इन कंजर्वेटिव पीपल। ही वाज बोर्न इन जेनेवा 1807 एंड बिकम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बनरी। अभी वो लीडर नहीं है, अभी वो सिर्फ मेंबर बना है। So many secret societies were there at the time of nationalism, क्योंकि शरेआम तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो सीक्रेट सोसाइटीज बनी हुई थी, एंड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। वन सच सोसाइटी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस सोसाइटी वाज कार्बनरी। नाम है जैसे आपके हाउस के नाम रखे होते हैं, टोपाज, सफायर, रूबी हाउस, ऐसे नाम रखे होते हैं। इन द सेम सेंस द ग्रुप्स नेम वाज कार्बनरी, और उसका एक मेंबर था गेस्पी मेज़िनी। Show me thumbs up if first line clear to you. चलो, thank you very much, thank you. शानदीप, unmute yourself, बेटा कंटिन्यू जहां से राहुल ने छोड़ा। He became a member of the secret organum. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लिगुरिया। चलो जी, लिगुरिया में उसने एक रेवोल्यूशन करी और 24 साल की उम्र में उसको जेल में डाल दिया। हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू शान। He subsequently founded 2 more undergrounded societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. चलो जी, अब उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली इन मार्सिलिस, नेम ऑफ अ प्लेस मार्सिलिस, एंड यंग यूरोप इन बर्न, दिस इज आल्सो नेम ऑफ अ प्लेस। 2 अलग अलग जगह पर सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। नाम क्या रखे? यंग इटली, यंग यूरोप। आपको जैसा इनके नाम लग रहे हैं ना, वैसे ही लोग इसमें शामिल थे। रोहित बहल, अनम्यूट योरसेल्फ। कौन से लोग इसमें इंक्लूड करे होंगे गेस्पी मेज़िनी ने? यस मैम। कैसे वाले लोग डाले होंगे अपनी सोसाइटीज में, अपने ग्रुप्स में, यंग इटली, यंग यूरोप में? एनी आइडिया? रेवोल्यूशनरी तो अदरवाइज रेवोल्यूशन कौन से लोग लाते हैं?
100 साल का बंदा रेवोल्यूशन ला सकता है? नहीं ना। बंदा अनएजुकेटेड पीपल रेवोल्यूशन ला सकते हैं? वो सोच भी नहीं सकते लड़ने का, वो बोलेंगे जो चला आ रहा है चला आ रहा है, ठीक है। वो Educated people. कौन से? Educated people. Educated people and सार्थक। मैम द यूथ। हाँ, यूथ को लिया उसने, उसे यंग पीपल को लिया। बूढ़े लोग थोड़ी कहाँ वो डालेंगे, बूढ़े लोगों को किस ग्रुप में डालेंगे और वो क्या करेंगे? तो ही इंक्लूडेड यंग एंड लाइक माइंडेड पीपल, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द सोसाइटी वाज यंग इटली, यंग यूरोप। ठीक है, नाउ कंटिन्यू बेटा, शान कंटिन्यू। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. मैज़ीनी मानता था कि नेशंस जो है वो भगवान ने बनाई हैं, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है। तो वी डोंट हैव एनी राइट टू ब्रेक द नेशंस, टू ब्रेक द कंट्री, वी हैव टू बी यूनाइटेड। मेरा वर्ड याद रखना, मैंने बोला यूनाइटेड, पूरा देश यूनाइट होना चाहिए। जैसे हमारा सपना था ना टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ऐसे इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी का सपना था टू बी यूनिफाइड, इकट्ठे होकर रहना है। मेरी बात याद रखना, फॉर द होल सेशन यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैस्पी मैज़ीनी। तो उसका भी यही सपना था। हाँ जी, क्रिश, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग फर्दर। सो इटली, क्रिश, अनम्यूट योरसेल्फ। क्रिश रोल नंबर 16। हाँ जी, स्टार्ट बेटा। सो इटली, क्रिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट इश्यू कोई नहीं है, अनम्यूट करो एंड स्टार्ट रीडिंग। Naharika, unmute yourself. Niharika, unmute yourself. Yes, beta, continue. So Italy. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following this model, Niharika, इतना पढ़ाने दो मुझे पहले। Now Niharika ने two important lines पढ़ी, Italy to be continued, not to be continued as a patchwork. अब इटली ऐसा नहीं होगा कि जगह जगह से टूटा पड़ा है, सेंटर में कोई और रूलर है, लेफ्ट में कोई और लीडर है, तो साउथ में कोई और किंग है। इटली का तो बहुत बुरा हाल था। अब मैज़ीनी ने सोचा मैं इटली को ऐसे नहीं रहने दूंगा, इटली शुड बी यूनिफाइड। निहारिका ने एक लाइन और पढ़ी, द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अगर इटली में लिबर्टी चाहिए तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इटली को यूनाइट करने का। हाँ जी निहारिका, कंटिन्यू बेटा। Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. चलो जी, मैज़ीनी कहाँ हटने वाला था, भगत सिंह से कम नहीं था वो। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of republics, उसका सपना था, विजन था कि सोशलिस्ट रिपब्लिक हो जाए, इटली पूरा यूनिफाइड हो जाए, और वो कंजर्वेटिव पीपल को बिल्कुल 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 भी बर्दाश्त नहीं करता था। ये था गैस्पी मैज़ीनी, इटली का रेवोल्यूशनरी। अच्छा, लास्ट लाइन निहारिका ने पढ़ी, आज ध्यान से सुन लो, वी विल कंटिन्यू द सेम वन विद नेक्स्ट वीक। निहारिका ने पढ़ा ड्यूक मेटरनिक, ये नया नाम है आपके लिए, पहले 5 बार बोलो साइलेंटली, ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक।
ये ड्यूक मेटरनिक ना कंजर्वेटिव था, ठीक है, और ये लिबर्टी नहीं चाहता था, बट टोटली ऑपोजिट ऑफ गैस्टी मैज़ीनी। अब ऑपोजिट ही होगा ना। हाँ राहुल, मैम ये न्यू नेम नहीं है, आपने पहले भी बताया हुआ है। पहले भी मैंने बताया ना, तो मेटरनिक जो था ना वो कंजर्वेटिव था। ट्रीटी ऑफ वियना में हम हाँ, और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था गैस्टी मैज़ीनी को। और एक बार उसने देखो कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। आगे जाके गैस्टी मैज़ीनी हमारी सोसाइटी का बहुत खतरनाक बंदा बन जाएगा, और गैस्टी मैज़ीनी बना। इसकी वजह से सोसाइटी में लिबर्टी आई। वी पीपल वर नॉट वी पीपल, यूरोप के पीपल को पता चला कि फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है। और मेटरनिक कहता होता था कि ये बड़ा खतरनाक बंदा है सोसाइटी के लिए। मेटरनिक सही कहता था। मेटरनिक वाज अ कंजर्वेटिव and Gesti Mazzini was a revolutionary. Now show me thumbs up if this question is clear to you. Gesti Mazzini karo. Chalo, thank you very much. Now we will mark the question. Mark करें कि next class में कर लें? चलो, we will mark this question in our next class and be very positive. And your homework, 2 questions to learn. 1, conservative. 2, revolutionary. And your syllabus for PT1 only up to page number 10. No syllabus. Okay. Chalo. Thank you very much, beta. Now I am going to end up the class. Thank you very much for joining. God bless you.